क्वेश्चन 29 विल बी योर होमवर्क. सी क्वेश्चन 30. किसी का हुआ फर्स्ट पार्ट? क्या है आंसर? करेक्ट. करेक्ट. Budgeted profit is 19,44,000 and the break even point is, क्या हुआ पुनीत? So what is this? Break even point is 1,62,000. Let's see the question. A single product manufacturing company has an installed capacity of 3 lakh units per annum. This is the installed capacity total. The normal capacity utilization of the company is 90%. That means they expect to produce 2,70,000 units in a month. Sorry, per annum. In a year, the expected production and sales is 2,70,000 units. The company has prepared the following budget for a year. Variable cost and fixed cost हमें दिया है, factory cost as well as selling and admin cost. Selling price per unit is given as ₹60. The actual production, sales, price and cost data relating to the year under review are as given below. Production, actual it is. Actual production is 2,40,000, actual sales is 225, actual opening stock, finished goods stock at the beginning of the year, it's 15,000 units. Actual factory variable cost exceeded the budgeted by 1,20,000. जितना हमने बजट किया वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट, उससे ज्यादा हमारे एक्चुअल वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट लगे हैं. दीज आर फॉर द वेरिएबल फैक्ट्री कॉस्ट. Calculate the budgeted profit and the break-even point in units. So budgeted profit you have calculated. Budgeted profit आपने कैसे find out किया? So the budgeted production quantity shall be 2,70,000 units. उसको 240 जो actual है उस पे नहीं लेंगे हम, ना actual sales quantity ना actual production quantity. We are preparing budget. So budgeted production quantity is 2,70,000. सबका आया या नहीं budgeted profit? कोई है जिसका नहीं आया हो? ओके, तो वी हैव कैलकुलेटेड द बजटेड प्रॉफिट बेस्ड ऑन 2,70,000 यूनिट्स. कैसे फाइंड किया आपने? सेलिंग प्राइस दिया हुआ है आपको 60 रुपीज, सेलिंग प्राइस इज 60. वेरिएबल कॉस्ट दिए हुए हैं, बजटेड वेरिएबल कॉस्ट आर 33 and 9. दैट मीन्स टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर 42. सो यू विल हैव अ कॉन्ट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ 18 रुपीज. यहाँ पर आपको कंट्रीब्यूशन, बजटेड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट मिला होगा 18 रुपीज. मल्टीप्लाइंग दिस बाय द क्वांटिटी, budgeted quantity which is 2,70,000, you will get the total contribution. उसमें से then you must have deducted the budgeted fixed cost 2160 and 7,56,000. यही किया है. So you will get the budgeted profit as 19,44,000. Then dividing the total budgeted fixed cost, that is 21,60,000 plus 7,56,000. इसको आप divide करोगे by the contribution per unit. So you will get the budgeted break even point. The budgeted break even point shall be कितना आया? 1,62,000 units. This is the first part. Second part. What increase in selling price was necessary during the year under review to maintain the budgeted profit? ये किया किसी ने? Now it said budgeted profit maintain आपको करना है. In the actual year, in the current year भी अगर आपको budgeted profit ही maintain करना होता, in that case आप selling price को कितना बढ़ाते? What increase in selling price was necessary? सेलिंग प्राइस में कितने इंक्रीज की जरूरत थी टू मेंटेन दी बजटेड प्रॉफिट? मतलब हमें प्रॉफिट इतना ही अर्न करना है, इतना ही प्रॉफिट अर्न करना होता तो हमें सेलिंग प्राइस को कितने से बढ़ाना पड़ता? प्रॉफिट हमें इतना अर्न करना है, द बजटेड प्रॉफिट
फिक्स कॉस्ट उतने ही होंगे जितने हमने बजट किए, उसमें कोई चेंज नहीं बोला गया है। दैट मीन्स हम कंसिडर करेंगे जो बजटेड है 2160 एंड 756 उतने ही एक्चुअली भी हमने फिक्स कॉस्ट इनकर किए होंगे. सो वी हैव required profit as 19,44,000 and we know actual fixed cost are 21,60,000 plus 7,56,000 which is total how much? 29,16,000. So this should be the desired contribution or required contribution. इतना हमें प्रॉफिट चाहिए, इतना फिक्स कॉस्ट है, तो टोटल हमें इनका सम जितना होगा दैट मच कंट्रीब्यूशन वी रिक्वायर. सो द डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन शैल बी हाउ मच? 48,60,000. दिस इज द कंट्रीब्यूशन विच वी डिजायर. एक्चुअली आपको एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन मिला, सो यू कैन नॉट फाइंड आउट, क्योंकि सेलिंग प्राइस ही आपको फाइंड करना है. You have to find the selling price itself. जब सेलिंग प्राइस ही फाइंड करना है तो आप कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हो? बट वेरिएबल कॉस्ट के केस में आपको ये बोला गया है एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट जो है हमारे दे आर 1,20,000 मोर देन व्हाट यू हैव बजटेड. जितना आपने बजट किया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट उससे 1,20,000 ज्यादा वेरिएबल कॉस्ट हुए. एंड दिस इज एट अ क्वांटिटी ऑफ 2,40,000 यूनिट्स. हमने 2,40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. सो 2,40,000 यूनिट्स से हमें इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए. नाउ देर आर टू केसेस. आप इसको 2,25,000 यूनिट्स पे भी कंसिडर कर सकते हो, 2,40,000 यूनिट्स पे भी कंसिडर कर सकते हो. देर इज नो रूल कि ये इतने पे ही आपको कंट्रीब्यूशन चाहिए. यू रिक्वायर दिस कंट्रीब्यूशन फ्रॉम व्हाट यू हैव प्रोड्यूस्ड और फ्रॉम व्हाट यू हैव सोल्ड. दोनों में से कोई भी अज्यूम करके आप आगे का कैलकुलेशन कर सकते हो. हम क्या माने, 2,40,000 या 225? 225. ओके, सो लेट अस अज्यूम the required contribution of rupees 48,60,000 is to be earned on quantity sold and not produced. That is on 2,25,000 units. 2,25,000 यूनिट से अगर हमें इतना कंट्रीब्यूशन चाहिए तो हम निकाल सकते हैं डिजायर्ड कंट्रीब्यूशन पर यूनिट. एक यूनिट से हमें कितना कंट्रीब्यूशन चाहिए होगा? 21.6. So we require a contribution of 21.6 rupees per unit. Contribution plus variable cost per unit gives us the selling price per unit. हमें वही निकालना है ना, revised selling price per unit. So let's find out the variable cost per unit. Variable cost per unit में एक तो आपका 33 rupees है, दूसरा आपका 9 rupees है. This is what you have actually incurred. इसके अलावा बोला गया है जो बजटेड था वो तो है ही, प्लस 1,20,000 आपने एडिशनली इनकर किया है. 1,20,000 फैक्ट्री ओवरहेड्स, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स आपका एक्स्ट्रा लगा है. फैक्ट्री ओवरहेड्स आपकी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड के ऊपर लगता है, ना कि क्वांटिटी सोल्ड के ऊपर. मार्केटिंग ओवरहेड होता, सेलिंग ओवरहेड होता तो 225 के ऊपर लगाते हैं, बट दिस इज फैक्ट्री ओवरहेड. तो ये जो आपने 120 एक्स्ट्रा इनकर किया है दैट मस्ट बी फॉर 2,40,000 यूनिट्स जो आपने प्रोड्यूस किए. दैट मीन्स पर यूनिट आपका वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड कितने से बढ़ गया? सो दिस शुड बी 1,20,000 डिवाइडेड बाय 2,40,000. इतने से बढ़ा होगा आपका फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट. ये समझ में आया? इसमें कोई डाउट? सो द एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट आर 42.5. This is the desired contribution. These are the actual variable cost.
So we can say the required selling price per unit shall be $64.10. Required selling price per unit shall be 64.1. और हमसे पूछा था what increase in selling price. Selling price कितने से increase करना है? That was what we were asked. तो कितने से increase होगा? Selling price budgeted was 60 rupees. Now the revised selling price you are considering as 64.1. That means we can say increase in selling price per unit is 4.1 rupees. Selling price हमें 4.1 rupees से बढ़ाना है. Any doubts? Any doubts? Okay. Now the third point. Third point में prepare statement showing the actual profit during the year under review by using absorption costing method and marginal costing method. Now we have to prepare the income statement. Income statement हमें बनाना है. Actual profit find करना है. Actual profit absorption से भी और marginal से भी. No budgeted or anything. Actual data के ही ऊपर हमें profits निकालना है. तो पहले हमें बोला है absorption costing यूज करने के लिए. So we do not have any separate material, labor, overheads वगैरह कुछ अलग अलग से नहीं है. We have total factory cost. Factory cost हमें बोला है variable are 33 and fixed are 2160. So you must be knowing हम fixed cost को absorb करते हैं, variable cost को absorb नहीं करते. Variable cost तो जितने हमने incur किए हैं वो पूरे ही हम include कर लेते हैं. पूरा का पूरा ही वो चार्ज कर लेते हैं जितना भी एक्चुअली इनकर किया. Why? Because we actually know the variable cost which you have incurred before the product is being out for sale. मुझे अगर ये मार्कर बेचना है, इस मार्कर को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट क्या क्या लगा है, ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस जैसे ही हुआ ना मार्कर, जैसे इसका प्रोडक्शन खत्म हुआ, आई नो इसमें कितना मटेरियल लगा है, कितना लेबर लगा है. दिस इज समथिंग आई नो एक्चुअली व्हाट हैज हैपेंड. वेरिएबल कॉस्ट जो होते हैं वो हमें एक्चुअली पता होते हैं. दे आर रिलेटेड टू दिस स्पेसिफिक यूनिट. तो जब ये प्रोड्यूस हो चुका है तब मुझे मालूम है इसके अंदर एक्चुअली कितने वेरिएबल कॉस्ट इनकर किए. फिक्स्ड कॉस्ट आई डू नॉट नो. फिक्स्ड कॉस्ट रेंट वो इस मार्कर से रिलेटेड कितना है वो मुझे अभी नहीं पता. पूरा साल जब खत्म होगा, जब एक्चुअल रेंट भी पता चलेगा, जब एक्चुअल नंबर ऑफ मार्कर्स भी पता चलेंगे, ओनली देन आई विल कम टू नो कि इस मार्कर से रिलेटेड फिक्स्ड कॉस्ट कितना. वेरिएबल सेल होने के पहले ही मुझे मालूम होता है एक्चुअल वेरिएबल कॉस्ट मैंने कितना इनकर करा. फिक्स्ड कॉस्ट नहीं पता होता. दैट इज वाई वेरिएबल कॉस्ट हम एब्जॉर्ब नहीं करते. ओनली फिक्स्ड कॉस्ट आर एब्जॉर्ब. तो जब हम वेरिएबल एब्जॉर्ब नहीं करते इसका मतलब जो हमने एक्चुअली इनकर किया वही वेरिएबल कॉस्ट हम कंसिडर कर लेते हैं. एक्चुअली हमने कितना वेरिएबल कॉस्ट इनकर किया, तो 33 रुपीज तो जो बजट किया था वो, प्लस 0.5 रुपीज फैक्ट्री ओवरहेड्स जो बढ़ गए. तो एक्चुअली हमने फैक्ट्री ओवरहेड्स इनकर किए पर यूनिट 33.5 रुपीज. वेरिएबल वाला एलिमेंट वो हम एक्चुअल पे ही लेंगे. सिर्फ जो फिक्स वाला एलिमेंट है उसको हम एब्जॉर्ब करेंगे. ये समझ में आया? सो वील हैव फैक्ट्री ओवरहेड्स. इसमें हमारे दो पार्ट्स हैं. वेरिएबल एलिमेंट विल बी 33 प्लस 0.5 मल्टीप्लाइड बाय हमने कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए. सो वी हैव प्रोड्यूस 2,40,000 यूनिट्स. हमने टोटल 2,40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किए. टोटल कितना होगा ये? 80 lakhs 40,000. इसके अलावा हमने कुछ फिक्स्ड वाला भी फैक्ट्री ओवरहेड्स एब्जॉर्ब किया है. दिस इज व्हाट वी विल एब्जॉर्ब नाउ.
बोला गया है पूरे साल में वी हैड बजटेड फिक्स्ड ओवरहेड्स ऑफ 21,60,000, ये हमने बजट किया था, एंड वी हैड बजटेड अ कैपेसिटी ऑफ 90%, नॉर्मल कैपेसिटी यूटिलाइजेशन वाज 90%। इसका मतलब ये 21,60,000 हमने एब्जॉर्ब किया होगा ऑन 2,70,000 यूनिट्स। एब्जॉर्प्शन रेट इस तरह से ही निकाला गया होगा, पर यूनिट हम इतना चार्ज करेंगे हर एक प्रोडक्ट पे, हर एक यूनिट पे, एंड वी हैव प्रोड्यूस्ड 2,40,000 यूनिट्स। सो दिस इज व्हाट वी हैव एब्जॉर्ब, दिस इज द एब्जॉर्प्शन रेट। किस रेट पे हम एब्जॉर्ब करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय द एक्चुअल प्रोडक्शन, वी विल गेट द अमाउंट एब्जॉर्ब्ड। $19,20,000 so there is an under absorption। एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड कुछ अलग से नहीं बोला है तो हम यही मानेंगे 2160 ही होंगे, और हम एब्जॉर्ब कर रहे हैं केवल 19,20,000। तो यहाँ पर कुछ अंडर एब्जॉर्प्शन है जिसका ट्रीटमेंट हमें आगे जाके देना है। ये हो गए हमारे फैक्ट्री ओवरहेड। सो दिस इज द फैक्ट्री कॉस्ट। $99,60। This is our factory cost। इसमें हम ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक का पहले एडजस्टमेंट करेंगे। सो वी हैव एन ओपनिंग स्टॉक ऑफ 15,000 यूनिट्स। 15,000 यूनिट्स का हमारे पास ओपनिंग स्टॉक है। ओपनिंग स्टॉक के कॉस्ट को यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा। ओपनिंग स्टॉक दैट मीन्स ये लास्ट ईयर प्रोड्यूस हुआ था, लास्ट ईयर प्रोड्यूस हुआ था। हमें जो 0.5 का इंक्रीज दिया है, दिस इज फॉर द करंट ईयर, नॉट फॉर द प्रीवियस ईयर। इसका मतलब लास्ट ईयर में तो 33 रुपीज ही लग रहे होंगे, इसीलिए हमने बजट 33 रुपीज का ही किया होगा। अगर लास्ट ईयर में ही 0.5 का इंक्रीज हो गया होता तो हम इस साल का बजट भी 0.5 रुपीज से बढ़ा के करते। लास्ट ईयर में 33 रुपीज इनकर किया गया होगा, इसलिए हम इस साल भी बजट 33 रुपीज के हिसाब से हमने बनाया होगा। ओके, तो वेरिएबल ओवरहेड जो हम एब्जॉर्ब कर रहे होंगे ऑन द ओपनिंग स्टॉक दैट मस्ट बी 33 रुपीज। व्हाट अबाउट द फिक्स कॉस्ट, तो 21,60,000 जो दिया है वो लास्ट ईयर का भी उतना ही होगा। एंड अगेन नॉर्मल कैपेसिटी हमारी 2,70,000 है, तो हम 2,70,000 पे ये 2160 एब्जॉर्ब कर रहे होंगे। तो हमारा पर यूनिट कॉस्ट फॉर द लास्ट ईयर, प्रीवियस ईयर में जो हमने प्रोडक्शन किया उस साल में हमारे स्टॉक का कॉस्ट कितना होगा। सेलिंग ओवरहेड तो कोई भी चार्ज नहीं होगा, चाहे वेरिएबल हो चाहे फिक्स हो, क्योंकि हम स्टॉक का कॉस्ट निकाल रहे हैं। हम अपनी इन्वेंट्री में कभी भी सेलिंग ओवरहेड्स को चार्ज नहीं करते, दे आर इनकर्ड एट द टाइम ऑफ सेल। और हमारे पास अभी वो इन्वेंट्री के फॉर्म में ही रखा है, सेल हुआ ही नहीं है, तो उनसे रिलेटेड कोई सेलिंग ओवरहेड हमने इनकर ही नहीं किए। दैट इज वाई वी नेवर इंक्लूड द सेलिंग ओवरहेड इन द वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। तो हमें इंक्लूड करना है केवल फैक्ट्री कॉस्ट। फैक्ट्री कॉस्ट में क्या क्या है, वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। सो वी हैव वेरिएबल factory overheads as 33 rupees and fixed factory overheads as 21,60,000 divided by 2,70,000, which is how much? 8 rupees। इसका मतलब factory cost per unit should be 42। लास्ट ईयर में जो भी हमने यूनिट्स बनाए उसका फैक्ट्री कॉस्ट होना चाहिए एक यूनिट का 42 रुपीज। इतना एब्जॉर्ब किया जाना चाहिए उस पर 41। ओके, 41 रुपीज पे हमें यूनिट्स का वैल्यूएशन करना चाहिए। इसमें कोई डाउट? ओके, सो वी विल ऐड द ओपनिंग स्टॉक ओवर हियर 41 रुपीज, और ऐसे है हमारे पास 15,000 यूनिट्स। Total value of the opening stock shall be 6,15,000। This is the opening stock। Closing stock भी है क्या कुछ? 15,000 हमने हमारे पास ओपनिंग में था इस साल, और
2,40,000 बनाया. So total we had 2,55,000 available. Out of them we have sold only 225. So that means we have a closing stock of 30,000 units. 30,000 units का हमारे पास closing stock है. इसका valuation अगर हम देखें, closing stock का valuation, we'll have to deduct the value of closing stock over here. So अगर हम देखें valuation of closing stock, वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स क्लोजिंग स्टॉक में कितनी इंक्लूडेड है? क्लोजिंग स्टॉक मतलब जो आपने करंट ईयर में प्रोड्यूस किया बट दे हैव नॉट बीन सोल्ड. जनरली हम फीफो ही फॉलो करते हैं, तो ओपनिंग वाला हमने बेच दिया होगा, क्लोजिंग वाला हमारे पास पड़ा होगा. सो करंट ईयर के प्रोडक्शन पे वेरिएबल फैक्ट्री ओवरहेड्स लग रहा है 33.5 रुपीज. 0.5 रुपीज से बढ़ गया है. ओके, फिक्स्ड ओवरहेड इतना ही होगा. फिक्स्ड ओवरहेड का एब्जॉर्प्शन रेट शैल बी द सेम. 8 rupees. That means factory cost per unit of the closing stock should be 41.5 rupees. इसमें कोई डाउट? So closing stock की value will be 41.5 into 30,000. 12,45,000. Cost of goods sold shall be 93,30,000. अब इसमें हमें ऐड करना है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स. सेलिंग ओवरहेड्स हमें दिए हैं, वेरिएबल आर 9 रुपीज. दिस मस्ट बी इनकर्ड ओनली फॉर द यूनिट्स विच वी हैव सोल्ड. जो हमने सेल की उन्हीं पे ही लगा होगा ये कॉस्ट. 9 into 2,25,000. 19 20 lakh 25,000 and the fixed portion जो एक्चुअली हमने इनकर किया 7,56,000. This should be cost of sales. लेस नहीं करना है, ये ऐड करना है. $121, 11,000. दिस इज द कॉस्ट ऑफ सेल्स. इसमें अंडर एब्जॉर्प्शन का एडजस्टमेंट करना है. देयर वाज एन अंडर एब्जॉर्प्शन इन द फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स. एक्चुअली इनकर हमने किया है 21,60,000, जबकि हम एब्जॉर्ब कर पाए केवल 19,20,000. दोनों का जो डिफरेंस होगा दैट शैल बी द अंडर एब्जॉर्प्शन. नहीं, उसको हमने एक्चुअली चार्ज कर दिया जितना एक्चुअल है. आप यहाँ अगर एब्जॉर्प्शन भी करते हो उसका, तो सेलिंग जितना भी है यू विल एब्जॉर्ब इट एट व्हाट रेट. हमारे लिए व्हाट इज रेलिवेंट इज ये वाला एब्जॉर्प्शन. क्यों? क्योंकि इससे हमारे स्टॉक का वैल्यूएशन चेंज हो रहा है. जो यहाँ पर आपने एब्जॉर्ब किया ना, दैट इज बीइंग इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक. अगर आप इधर करते भी 7,56,000 डिवाइडेड बाई 2,70,000 इंटू 2,25,000, वो इधर आ जाता. बाकी का जो बैलेंस होता वो इधर आ जाता. दूसरा कोई इफेक्ट नहीं हुआ, टोटल मैच हो गया. यहाँ पर क्या हुआ, आपने इधर एब्जॉर्ब्ड बेसिस पे लिया फिक्स फैक्ट्री ओवरहेड्स. उसके बाद जो डिफरेंस इसके और इसके बीच में आया वो आपने इधर कंसिडर कर लिया एज अंडर एब्जॉर्प्शन. तो इन दोनों का टोटल तो मैच हो गया 21,60,000, लेकिन उसका एक इफेक्ट आपके क्लोजिंग स्टॉक में चला गया, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक के वैल्यूएशन में भी आपने इस रेट को कंसिडर कर लिया है.
करेक्ट, इसलिए उसका इफेक्ट आता है। तो लास्ट जो हमने क्वेश्चन किया था ना, उसमें सेलिंग ओवरहेड का हमें रेट गिवन था, इसलिए हमने वो रेट एज इट इज अप्लाई कर दिया ऑन द क्वांटिटी और बाद में अंडर एब्जॉर्प्शन कंसिडर कर लिया, ताकि कैलकुलेशन ज्यादा नहीं हो। यहाँ पर रेट नहीं दिया हुआ है हमें, तो हम क्यों रेट निकाल के उसको और मल्टीप्लाई करें अपने स्टेप्स, उसका कोई रेलेवेंस नहीं है। ओके, अंडर एब्जॉर्प्शन ऑफ फिक्स्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, that will be 21,60,000 minus 19,20,000। हमने इनकर किए 2160, जबकि यहां पर चार्ज किया 19,20,000। 120 नो 160 240। This will be the net cost of sales now comparing this with the sales, we have sold 2,25,000 units at the rate of 60 per unit. We'll get the profit as balancing figure 11,49,000. Any doubts? Any doubts? Next हमसे बोला है